بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت، دوستان محترم، آج 4 جنوری 2017 شام کے 4 بجے یہ آڈیو ریکارڈنگ میں جاری کر رہا ہوں اپنی جانب سے۔ کل 3 جنوری 2017 کو بھی میں نے مولوی عبدالاحد قاسمی دیوبندی مناظر کو کے نام ایک آڈیو جاری کی، جس میں اسے اور اس کے رفقا کو، ساتھیوں کو اندور آنے کی دعوت دی۔ اور جو کل میں نے 3 جنوری کو آڈیو ریکارڈ جاری کی تھی، اس کا سبب یہ بنا تھا کہ 1 جنوری کو مولوی عبدالاحد قاسمی نے جشن فتح کے نام سے، فتح مبین کے نام سے ایک لمبا چوڑا میسج اور ایک کچھ تقریباً 26 منٹ کی آڈیو اس نے ریلیز کی۔ تو میں نے اسے سنا نہیں، بس میسج پڑھ لیا تھا۔ میسج میرے پاس پہنچا تھا کہ بھئی دیوبندیوں نے اپنی فتح کا اعلان کیا اور فاروق رضوی صاحب کو بھگوڑا نمبر 1 اور کلیم حنفی رضوی کو بھگوڑا نمبر 2 قرار دے کر دیوبندی خیمے میں جشن کا ماحول ہے۔ بس اس میسج کو پڑھنے کے بعد میں نے کل ایک آڈیو ریلیز کی 11 منٹ 3 سیکنڈ کی، جس میں 10 لاکھ کا انعام بھی رکھا اور الرضا کمیٹی کے جانب سے لیٹر ہیڈ دینے کا وعدہ بھی کیا اور اندور کی سرزمین پر عبدالاحد قاسمی کو بلایا۔ اب رات ایسا اتفاق ہوا کہ میں نے اس کی وہ آڈیو سن لی جو اس نے فتح کے حوالے سے جاری کی تھی 26 منٹ کی۔ تو اس میں شروعات میں فاروق رضوی کے حوالے سے کچھ باتیں کہی اس نے، بعد میں پھر میرے حوالے سے کچھ باتیں کہی اور مجھے بہت زبان دراز، بد کلام اور نہ جانے کیا کیا کہا، جس میں یہ بھی کہا کہ ہم اس شخص سے کیسے مناظرہ کریں، کیسے بات کریں کہ جس کو جو ہر وقت گالیاں دیتا ہو، گالیاں لکھتا ہو۔ تو اسی آڈیو کے اندر آخر میں وہ لوگ ایک اسکرین شاٹ چلا رہے ہیں واٹس ایپ کا، جس میں اوپر میرا نمبر ہے اور نیچے کچھ گالیاں لکھی ہوئی ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسکرین شاٹ سے، ان گالیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ وہ میری جانب سے لکھا ہوا میسج ہرگز نہیں ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اگر 2 موبائل ہوں، 2 نمبر ہوں اور ایک پر وہ دوسرے سے میسج کرے گالی گلوچ وغیرہ کا، اب ظاہر سی بات ہے وہ میسج تو اس کے دوسرے نمبر سے آ رہا ہے۔ اب اس نمبر پر وہ کسی کا بھی نام سیو کر لے یا بجائے نام سیو کرنے کے کسی اور کا نمبر سیو کر لے، اس لیے کہ نام کی جگہ نمبر سیو کرنے کا بھی آپشن آتا ہے۔ بہرحال کسی کا نمبر سیو کر لے اور سیم اس کے جیسا پروفائل پکچر ڈی پی وغیرہ لگا لے اور اس بات کو مشہور کرے کہ بھئی وہ فلاں صاحب نے یہ گالیاں دی ہے، تو مولوی عبدالاحد قاسمی کو معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ اس کو مفتی کہا جاتا ہے، واقعی میں وہ مفتی ہے، اس نے افتاء پڑھا ہے، تخصص سے فقہ کیا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں مسموع بالشہادہ نہیں ہے، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس بنا پر مفتی فتویٰ دے اور کوئی حکم لگائے۔ میں اس کا، ان میسیجز کا، میرے میسج ہونے کا انکار کرتا ہوں۔ البتہ اخیر میں اس نے ایک آڈیو سنائی جس میں ایک صاحب سے میری بات ہوئی، تو میں نے کہا مناظرہ تو ہوگا، لیکن اس بات پر کہ رشید گنگوہی نے قاسم نانوتوی کے پچھلے حصے میں درد پیدا کیا تھا گنگوہ کی خانقاہ میں، جب تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کو مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء نامی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اس کو سنا کر وہ کہہ رہا دیکھیے کتنا بد زبان ہے، بد کلام ہے، اور یہ بریلویوں کا شیخ الحدیث اس قدر گالیاں دیتا ہے، تو اس شخص کو ہم کیسے منہ لگائیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں اس کی نیک نیتی کار فرما ہے یا اس کا جذبہ صادق کار فرما ہے، بلکہ سب فرار کے راستے ہیں، یہ کہہ کر دامن چھڑانا کہ بھئی یہ تو گالیاں دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں بتا دوں کہ مولوی عبدالاحد قاسمی، تم اتنے ظریف ہوتے،
सलीमुत तबा और हलीमुल फिक्र होते, तुम इतने पाक दामन पारसा मुत्तकी परहेजगार होते, तो तुम देवबंदियत का इंतखाब ही नहीं करते, तुम देवबंदी धर्म में जाते ही नहीं। जिस धर्म में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दामन तकदीस पर धब्बा लगाया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को घटाया गया, ये तो अलग। उसके अलावा जो मुगल्लज़ात, जो फुहूशात और जो बकवास देवबंदी लिटरेचर में मौजूद है, अल्लाह की पनाह ऐसा तो किसी सड़े से सड़े नाविल निगार ने भी अपनी नाविल में नहीं लिखा। आप कहते हैं कि मैं गालियां देता हूं, भाई मैंने गाली नहीं दी, बल्कि मैंने एक हकीकत की जानिब इशारा किया कि ये चीज़ आपकी किताब में मौजूद है और इस पर मुनाजरा होगा। एक काम करें, आप अपने मौलवियों की किताबें पढ़ें और उनके ज़ौक़ का पता लगाएं कि वो किस तबीयत के लोग थे। वो मसलन इफ़ादातुल यौमिया में मौलवी अशरफ अली थानवी अपने मामू के तबलीग का एक वाक़या बयान करता है कि कानपुर वो तशरीफ़ ले गए तो वहाँ उन्होंने तबलीग के लिए ये शर्त लगाई कि मैं इस शर्त पर तकरीर करूँगा कि लोग मुझे नंगा करें, मेरे वज़ूए ख़ास को आगे से पकड़ कर खींचें और मेरे पिछले हिस्से में उंगली करते रहें और ये शोर मचाएं, भड़वा रहे भड़वा, भड़वा रहे भड़वा। अब ये हमें बोलते हुए शर्म महसूस होती, लेकिन देवबंदियों ने इसे अपनी किताबों में लिख दिया। इतना ही नहीं, अरवाह सलासा नामी किताब, जिसका एक पेज खोलने के बाद अंदर नाम आता है हिकायात औलिया, इसमें मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि मौलवी कासिम नानोतवी अक्सर दारुल देवबंद के छोटे तलबा की कमरबंद खोल दिया करते थे और एक मरतबा हाफिज दामिन जलालाबादी से कहा कि अब की तेरी मारूं। तो ये सब क्या है? उसी किताब में लिखा है कि मौलवी रशीद गंगोही ने दोपहर के वक्त भरी खानकाह में जब लोग बैठे हुए थे, मौलवी कासिम से कहा ज़रा यहाँ लेट जाओ। मौलवी कासिम ने फरमाया कि हजरत लोग क्या कहेंगे? तो रशीद गंगोही ने कहा लोग कहेंगे कहने दो। फिर आप अदब से चित लेट गए और फिर उन पर मौलवी रशीद गंगोही का नुज़ूल हुआ और उन्होंने अपने हाथ से उनके सीने पर फेरना शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें जिसे हम ताबीर करते हैं इग़लामबाजी से और गे कम्युनिटी से, ये सब तो दारुल देवबंद की पैदावार है। मौलवी अब्दुल अहद कासमी, आपका मुताला अपने अकाबिरीन की किताब पर शायद कम है। अजीब बात है, जिस बात को छापने में आपको शर्म नहीं आई तो हम उसे छुपाएंगे क्यों? आपने छापा और हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम छुपाएं। हम तो उसको और जाहिर करेंगे ताकि लोगों में आप लोगों की नज़रों में आपकी हकीकत उजागर हो कि आप लोग किस कौम से, किस मजहब से आपका ताल्लुक़ है, आपके अकायद व नज़रियात क्या हैं। बहरहाल ये मौलवी अब्दुल अहद कासमी आखिर में यही कहता रहा कि नहीं, सूफी कलीम की ज़बान इतनी ख़राब है, मैं उनसे मुनाजरा नहीं करूँगा, कोई भी देवबंदी आलिम इसके मुँह न लगे, वगैरह वगैरह। बेवकूफ़ ये क्यों नहीं कहता कि तेरे अंदर इतनी जुरात ही नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ा होकर अपने अकाबिरीन का दिफा कर सके। बार बार तो ये कहता है कि मौलवी अहमद रज़ा खान का कुफ्र, मौलवी अहमद रज़ा खान के इस्लाम पर बरेलवी उलमा की किताबों से बात होगी कि बरेलवी उलमा के नज़दीक मौलवी अहमद रज़ा खान माज़अल्लाह काफिर है। अरे हम तो इंशाअल्लाह वक्त आने पर तेरे बुजुर्गों की किताबों से मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का इस्लाम साबित करेंगे, उनका आशिक़ रसूल होना साबित करेंगे। इस्लाम तेरे अकाबिरों का खतरे में है, उन पर उलमाए हरमैन तय्यबैन का फतवा है, उलमाए पाको हिंद का सिंध का फतवा उन पर है, तेरे अकाबिरीन पर। और मैं यही कहता हूँ कि सामने बैठो, तुम्हारे अकाबिर की वो किताबें जो सबब तनाज़ा बनी हुई और उम्मत में एक बड़ा इफ्तराक पैदा हुआ है, उस पर अज़ सरे नौ बहस कर लो। क्या ये इबारतें कुरान और सुन्नत के मिजाज से मेल खाती है? क्या इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़र्रा बराबर भी ये बातें दुरुस्त है? रूबरू बैठ कर बातें कर लो। आप इंदौर आएँ 28 जनवरी को, मैंने डॉक्टर फरीद का नंबर दिया, आप उनसे कांटेक्ट करें और उनके पास अपनी डिटेल भेजें, वो आपको व्हाट्सअप करेंगे लेटर हेड अर्रज़ा कमेटी का, और भरे मजमे के सामने मुनाजरा हो उलमाए देवबंद के कुफ्र व इस्लाम पर और जो उन्होंने मुगल्लज़ात, जो गंदगियाँ अपनी किताबों में लिखी है उस पर, कि एक आम शरीफ़ुत्तबा इंसान भी ऐसी बात करने में हिचकिचाहट महसूस करेगा, बल्कि उसकी नज़ीफ तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि उस किस्म की बातें करें और सुने जो आपके अकाबिरों ने अपनी किताबों में लिख दिया है। ठीक है, जब ये मरहला तय हो जाए तो फिर आप जिस मौजू पर चाहें हमसे बात कर लें। पहला मौजू हमारी जानिब से
आप मुनाजरा जीत जाएं, 10 लाख रुपए इनाम ले जाए। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में तो बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार बन रहे थे, आपने लोगों को ये नहीं बताया कि मैंने आपकी अपने व्हाट्सएप पे मेरी सुन्नी जमीयतुल अहनाफ तंजीम की जानिब से लेटर हेड आपको भेजा और आपने व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक किया। जब भी मैंने आपको कॉल किया आपने कॉल नहीं उठाया और आप मुझे कहते हैं कि माज़अल्लाह मैं गालियां देता हूं और बुरा भला बोलता हूं, इसलिए लायक इल्तिफात नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है। आपने जो 26 मिनट की फतह की ऑडियो रिकॉर्ड की है, लोगों सुन लो उसे। सुन्नी मुसलमानों कितनी गालियां इसने दी है, चरसी, भंगी, चमार, ये वो, पखाना और न जाने क्या 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 क्या। और उसके बाद माशाअल्लाह ये भगत बगले इतने मुत्तकी परहेजगार बने गोया हमने कुछ किया ही नहीं। इन्होंने जितनी गालियां दी उसके मुकाबले में मैं गाली तो नहीं दे सकता। अलबत्ता मिर्जा बैदल का ये शेर इस मौके के लिए मुनासिब है, दुश्नाम अगर दहद खसी से चारा नबुवद बद सुनीदन, कि अगर कोई दुश्मन कोई नालायक गालियां देने पर आ जाए तो सुनने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्यों? गर पाए कसे सगे गजीदा, कि किसी आदमी के पैर पर अगर कुत्ता काट ले तो सगरा ना तवाइवर गजीदन, कि बदले में उस बेचारे कुत्ते को नहीं काटा जाता है। यानी अगर इन्होंने कुत्तेपन का मुजाहरा किया, कमीनगी का इजहार किया, तो हम इनके मुकाबले में इतनी जुरात नहीं कर सकते कि उसी सतह पर आकर बात कर सके। ये इनकी अपनी सतह, ये इनका अपना इल्म कलाम है, वो हमारी सतह नहीं है। और दूसरी बात, आप मेरा कॉल आज भी नहीं उठाते हैं, फिर अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। आपने व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक कर रखा, बाद में आपने व्हाट्सएप ही शायद डिलीट कर दिया और आप बहाना सिर्फ ये कर रहे हैं कि नहीं साहब गालियां देते हैं, गालियां देते हैं। मुनाजरा जब होगा ना मौलवी साहब, जरा आप अपनी जमात के बड़े इस वक्त जो बड़े हैं मौलवी नजीज गयावी, ताहिर गयावी, उनसे पता करो कि मुनाजरा किस चीज का नाम है। आपने मुनाजरा किस चीज का नाम रखा? आंख मिशोली का नाम है? पकड़म पकड़ी का नाम है? नहीं, मुनाजरा अपने मसलक के हक को सही होने के लिए फरीक़े मुखालिफ पर दलाइल की बरसात करने का नाम है, कि दलाइल की रोशनी में अपने मसलक को हक को सही बताना। ठीक है, तो आपके अकाबरीन का इस्लाम खतरे में है, उनकी वो बकवास जो किताबों में भरी पड़ी है। आप कल मुझसे कह रहे थे ना अपनी ऑडियो में कि ये तो एक पखाना है जिस पर पैर रखने से पैर गंदा होगा, और मुझे कराहत हो गई इससे बात करके। शायद आपको ये नहीं मालूम कि पखाने का मकाम देवबंदी धर्म में क्या है। किताब तज़किरतुल खलील लिखने वाले आपके आलिम मौलवी आशिक इलाही मेरठी, उन्होंने मौलवी कासिम के नानी का जो वाक़िया बयान किया है कि वो 3 साल बिस्तर पे इस हालत में रही कि उसी बिस्तर पे वो हगती रही, मूतती रही और इसी हालत में वो दुनिया से चल बसी। तो बाद में उनके जो हगे हुए कपड़े हैं, पखाना लगे हुए कपड़े निकाले गए तो बजाय बदबू के उसमें खुशबू थी, और जो बंदियों ने उसे बतौर तबर्रुक के उठाकर रख लिया। तो इंशाअल्लाह जब आपसे सामना होगा तो इन सारी बातों पर बहस होगी कि इग़लाम बाजी और पखाने को तबर्रुक बनाना और तमाम जो गंदगियां आपकी किताबों में भरी पड़ी है, इस वक्त मुझे मुस्तहज़र नहीं है। इतनी गंदगी कि अल्लाह की पनाह, उन सब पर बात होगी। और मैं जानता हूं कि आप मरते मर जाएंगे, क़यामत तो आ सकती है, वो दिन नहीं आ सकता कि जब आप मेरे सामने खड़े होकर अपने अकाबिरीन का दिफा करें। मैं अल्लाह की इज़्ज़त व जलाल की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह के अर्श व कुर्सी की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की किबरियाई की कसम खा के कहता हूँ कि आप मर जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा कि आप मेरे सामने खड़े होकर अपने अकाबिरीन का दिफा करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अकाबिरीन ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। जो बंदी लंका के इन रावणों ने इस्लाम पे कैसा गजब ढाया है, मुसलमानों के साथ कैसा जुल्म अजीम किया है, आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप आकर मेरे सामने खड़े हो जाएं। चलिए, आप उलमाए देवबंद के वकीले सफाई हैं, अकाबिरीन का दर्द आपके सीने में है, आप देवबंदियत के बड़े हमदर्द हैं, मुबल्लिग हैं, खैरख्वाह है। तो आइए मैं आपको मौका देता हूं 28 जनवरी 2017 इंदौर की सरजमीन पर, जहां आपके मसलक के लोग भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक के लोग भी हैं, हमारा इदारा भी है दारुल उलूम नूरी, उसका पूरा स्टाफ वहाँ मौजूद होगा। हजारों की तादाद में लोग मौजूद होंगी। 44 साला जश्न गौसे आजम है जिसमें मेरा इंतखाब किया गया है बहैसियत मुकर्रिर। मैं वहाँ तकरीर की गरज से जाऊँगा, आप तशरीफ लाएं। तकरीर होने के बाद आपसे बैनल अवाम के सामने मुनाजरा होगा। आप मुनाजरा जीत जाएं, 10 लाख बखुशी आप ले जाएं और पूरी दुनिया में आप जश्न फतह मनाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप मुनाजरा हार जाएं तो फकत
मेरे मसलक हक को मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत को कबूल कर लें। अब ये नहीं कि इस ऑडियो के मुकाबले में एक ऑडियो आप और छोड़ दो और ये ऑडियो का खेल खेलते रहो कि आप एक ऑडियो छोड़ें मैं एक ऑडियो छोड़ूं, ये मसले का हल नहीं है। मौलवी अब्दुल अहद कासमी, आपको मैं इतनी छूट दे रहा हूं कि आपकी आमदो रफ्त का खर्चा, आपके सिक्योरिटी की जमानत और सारी किताबें आप अकेले आए, जो किताब आपको चाहिए दारुल उलूम नूरी से और अल रज़ा कमेटी के लाइब्रेरी से सारी किताबें, आपके अकाबरीन की किताबें भी और सारा इस्लामी लिटरेचर, हमारे अकाबरीन की किताबें भी, सब कुछ वहाँ पर दस्तयाब होंगी, अवेलेबल होंगी। आपको फ़कत आना है, आकर आपको अपने अकाबरीन का दिफा करना है। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। 28 जनवरी को आप नहीं आए, उससे पहले आप कोई ऑडियो रिलीज ना करें। आपको क्या चाहिए? लेटर हेड चाहिए ना? आप डॉक्टर फरीद का मैंने कल वाली ऑडियो में नंबर दिया, उनसे कांटेक्ट करें, वो लेटर हेड देंगे। आप अपनी फोटो आईडीज भेजें, वो आपको टिकट्स बना देंगे। ये सारी चीजें हो गई। अब आपको आना है, मुनाजरा करना है। ये नहीं कि अब और कोई ऑडियो रिलीज कर दो और लोगों के इंतशार में इजाफा करो, ये नहीं। रूबरू आओ, बात करो, मसले का हल निकालो। 28 जनवरी को आप नहीं आए, 29 जनवरी को अहले सुन्नत व जमात, हनफी, बरेलवी उम्मत के सवाद आजम का ऐलान फतह होगा। हम अपने फतह मुबीन का ऐलान करेंगे और उसके बाद हम आपको नाकाबिले जिक्र शय समझकर छोड़ देंगे, यानी आपसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद आपने बरेलवी मसलक के ताल्लुक से हर्जा रसानी की, बरेलवी मसलक के ताल्लुक से आपने बयानबाजी की, अब उलमाए अहले सुन्नत व जमात बरेलवी के ताल्लुक से कोई गलत बयानी से काम लिया तो आप ये ना सोचें कि कलीम हनफी रज़वी खामोश रहेगा। हर मोड़ पर आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर हाजिर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। मेरे प्यारे प्यारे सुन्नी, जन्नती, हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, बरेलवी भाइयों, आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे मैंने पिछली बार रोमन में, उर्दू में 50 रोज़ा ऐलान मुनाज़रा गैर मुक़ल्लिदीन के हवाले से किया था, आप सब ने उसको हर जगह आम किया, वैसे ही इस ऑडियो को आप हर जगह आम करें ताकि 28 जनवरी तक ये हर देवबंदी के मोबाइल में पहुंचे। खुद अब्दुल अहद कासमी को कई मरतबा ये पहुंचना चाहिए मेरा ऑडियो। और फिर इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह व रसूल ने चाहा तो 29 जनवरी को आप हजरात एक खुशखबरी सुनेंगे इस फ़कीर की ज़ुबान से। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।